He pursued his MA in Economics from Patna University in 1948 and pursued his research work at jute cultivation in Bihar. He was also a fellow of Patna, highly appreciated. As a young child, he had observed the flood situation, destruction of livelihood and erosion of transport structure due to the turbulent situation of Kosi River. His willpower compelled him to bring a solution to the problem by working on the entire Kosi region. He was lauded for his contribution for the Kosi project, which named him Kosi Mishra in the Lok Sabha. He had surveyed the situation of Kosi region with Pandit Jawaharlal Nehru, who was the then Prime Minister at that time. The efforts were in the formation of Kosi Barrage and Kosi Irrigation Scheme. He is also known for implementation and construction of metro line rail line in Farakka Rail Bridge, Kolkata, Mithila University in Darbhanga, Akashvani Kendra, and for his contribution to the railway system. As the Railway Minister of India, he focused on the development of Indian railways. His work in connecting rail lines in Bihar, Saharsa connecting Darbhanga to the road, has been highly praised. His vision was to enforce rapid economic industrial development with establishment of railway lines. He was a great nurturer of Indian art, culture and religion. He had restored several ancient temples in India and Nepal during his lifetime. He had implemented several public welfare programs to remove backwardness and poverty from rural areas. He held various positions in the political arena. In fact, it was Shri Krishna Sinha, Bihar's first Chief Minister, on whose recommendation Pandit Jawaharlal Nehru appointed my grandfather as a parliamentary secretary. My grandfather held a number of positions in the Congress and ministerial portfolios in its government at the centre. He joined the All India Congress Committee in 1950 and was member of the first and second Lok Sabha from 1952 to 1962. He was a member of the Rajya Sabha from 1964 to 1966 and then from 1966 to 1971. He was elected as a member of the Congress Working Committee in 1972. He held various posts in the Congress party and also in the government at that time. He was the Parliamentary Secretary, Ministry of Planning, Labour and Employment, Deputy Minister for Labour, Employment Planning from 1960 to 1962, Deputy Minister for Home Affairs from 1964 to 66, Deputy Finance Minister from 1966 to 67, Minister of State for Labour, Employment and Rehabilitation from March to November 1967, Minister of State for Defence Production from 1967 to 70. From 1970 till 4th February 1973, he was Minister of Foreign Trade. This period marked an increase in volume of exports and state participation in foreign trade. On 5th February 1973, he was made Cabinet Minister of Railways by then Prime Minister Srimati Indira Gandhi. Internationally too, he represented India at various platforms. As a leader and official state representative, he led an Indian delegation to the Second United Nations Conference on Trade and Development in Santiago. He also led an Indian delegation to the United Nations Economic Commission for Asia in Bangkok and Manila. Apart from the political venture, he also played an important role in popularizing Mithila art. His entire life was value creating. Having contributed immensely for the country's welfare, he is a true heroic figure for every Indian. Unfortunately, on 2nd January 1975, while declaring open a broad gauge railway line, my grandfather was seriously injured due to bomb explosion at the Dais and succumbed to his injuries on 3rd January 1975 at a railway hospital in Danapur. Even today, people gather in huge crowds to pay him tribute on his death anniversary and birth anniversary in Bihar. I would now request my brother Vaibhav Mishra to take the lecture series forward. थैंक यू साक्षी, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत आभार आप सबका, आप सब आए आज इस इवेंट पे। पिछले 5 साल से मैं ये लगातार करते आ रहा हूँ। ये आपका प्रेम और श्रद्धा है बाबा के लिए, तो आप सब आज उपस्थित रहे हैं।
मैं दिल से तो अपने हृदय से आप सबको थैंक यू करता हूँ कि आप सब आए इस इवेंट में। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। We now start with lighting the lamp ceremony. May I request Dr. Ghulam Nabi Azad, Mr. Vivek Tanka, Mr. Pradeep Rai, and Mr. Abhay Verma ji to please initiate the ceremony with lighting of the lamp. Our first chief guest speaker is Mr. Ghulam Nabi Azad. I'll just give a brief introduction about sir. Dr. Ghulam Nabi Azad was born on the 7th of March 1949 in Johra district in Jammu and Kashmir. आज तो हमें मिश्रा साहब के बारे में जाना है, उसके बारे में Sir, छोटा सा आपका introduction तो then we'll start, sir. Dr. Ghulam Nabi Azad served as a leader of opposition in Rajya Sabha until February 2021. He served as Parliamentary Affairs Minister of India under Dr. Manmohan Singh until 27th October 2005. He was the Chief Minister of Jammu and Kashmir as well. Recently, I must say, sir was awarded the Padma Bhushan Award, which is duly due upon him and very well deserved. A big round of applause for this, sir. Mr. Azad started his career working as Secretary of Block Congress Committee in Barisal in 1973. 2 years later, he was nominated as the President of Jammu Kashmir Pradesh Youth Congress. In 1980, he was appointed as President of All India Youth Congress. After being elected in the 7th Lok Sabha from Maharashtra's Washim in 1980, Mr. Azad entered the central government as Deputy Minister in charge of Law, Justice and Company Affairs Ministry in 1982. Subsequently, Mr. Azad was elected in the 8th Lok Sabha in 84 and was a member from 1990 to 1996 from Maharashtra in Rajya Sabha. During Narasimha Raw's government, Mr. Azad took charge of Parliamentary Affairs and Civil Aviation Ministry. He was subsequently elected to the Rajya Sabha from Jammu and Kashmir from 30th November 1996 till 29th November 2002 and then 30th November 2002 till 29th November 2008. In the second UPA alliance government under Dr. Manmohan Singh, Mr. Azad was sworn in as the Health Minister of India. He was elected as the Rajya Sabha for the fourth term and third term from Jammu and Kashmir from 1996 till 2002. During this tenure, he vowed to expand the National Rural Health Mission, which has mobilized half a million health workers all across India, and later his ministry also launched National Urban Health Mission to serve the slums during urban poor. May I request each and every one of us to give a big round of applause to Dr. Ghulam. May I please ask my uncle, Dr. Mr. A.N. Jha, to please give a moment of felicitation, and then we'll start with Mr. Azad's speech. मेरे साथी और भाई पार्लियामेंट के मेंबर विवेक तनखा साहब, वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रदीप राय जी, अभय वर्मा जी, यहाँ परिवार के सभी लोग हैं, विशेष रूप से विकेश मिश्रा जी और विभाव मिश्रा जी, सभी सुपुत्र सुपुत्रियां, डॉक्टर गुलाम और मेरे साथियों, आज एक ऐसी दिन पे हम जमा हुए हैं जहां मैं शहीद ही उनको कहूंगा एक तरीके से, क्योंकि देश का
कोई व्यक्ति जिसने देश को बनाने के लिए, देश के लिए काम करने के लिए अपनी जान दी, वो तो शहीद ही होता है। ललित नारायण मिश्रा जी, मैं उनको तो शहीद कहूंगा। ग्रैंड डॉटर, उनके पैदा होने से लेकर उनके मृत्यु होने तक उनके बारे में बताया, किस तरह से अलग अलग मंत्रालयों में रहकर उन्होंने देश की सेवा की। और उस वक्त के जो लीडर होते थे वो बिल्कुल भिन्न। आज मिलावट बहुत आ गई है राजनीति में। मैं हर पब्लिक मीटिंग में कहता हूँ, कोई नई बात नहीं। बहुत कम लोग रहे हैं राजनीति में जो सेवा की भावना से आते हैं, बहुत कम। आज बहुत सारे राजनीतिक दलों में बहुत सारे राजनेता का अलग अलग लक्ष्य। किसी के पास सब कुछ है लेकिन पॉपुलरिटी के लिए आता है, ताम झाम के लिए आता है। किसी के पास नहीं है तो पैसे बनाने के लिए आता है। तो हर किस्म के लोग आज राजनीति में। लेकिन उस जमाने में पैसे बनाने का कोई सवाल नहीं था, ताम झाम का कोई सवाल नहीं, क्योंकि वो उस पर विश्वास नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, शास्त्री जी से लेकर नीचे, जिनके मरने के बाद उनके पास कोई पूंजी नहीं। मंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, पूरे कपड़े भी नहीं। तो वो पीढ़ी खत्म हो गई, नई पीढ़ी आई। और नई पीढ़ी में जब कई अच्छाइयां आई, कई बुराइयां आई, जिससे समाज में बहुत सारी बीमारियां आई, उसी तरह से राजनीति में उन अच्छाई को दबाने के लिए आज बुराइयां। आज जहां हम एलन मिश्रा जी का जन्म दिवस मना रहे हैं, आज 3 और हमारे बहुत ही महापुरुष लोगों की का मार्टिरडम भी है। आज ही के दिन अंग्रेजों के जमाने में भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु जी को फांसी पर। ये खुशियां और गमियां हमेशा से चलती आ रही। एक तरफ से आज 23 मार्च खुशी का दिन है और दूसरी तरफ से आज रोने और मातम मनाने का भी दिन है। और ये सब लोग 25 साल की उम्र से छोटे छोटे, अंदाजा लगाइए 21 साल 23 साल की उम्र में देश पर शहीद होने की इच्छा और भावना, उसमें कोई पैसा नहीं, उसमें कोई लालच नहीं, उसमें कोई मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनने की, कोई एमएलए बनने की इच्छा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। दूर दूर तक शायद उस वक्त सोचते थे कि इसका शायद परिणाम कई 100 साल बाद होगा। तो दूसरी बात है कि कुछ दशकों के बाद ही उनकी मेहनत और उनका खून रंग रहा। मुझे अफसोस है जब हम एलन मिश्रा साहब की शहादत की बात करते हैं, जिस तरह से वो ग्रेनेड अटैक में मारे गए। यहाँ हमारे बहुत और शहीद हैं जो शहीद हुए। सबसे पहले आज़ादी के बाद शहीद होने में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शहीद हुए। उसके बाद बहुत सारे और लीडर हुए, इंदिरा गांधी हुई, राजीव गांधी हुई, प्रताप सिंह कैवन हुए, उनको भी इसी तरह से वो भी इसी तरह के शहीद हुए। मेहता जी हुए, जो चीफ मिनिस्टर गुजरात के, वो तो खैर पाकिस्तान की उस लड़ाई में उनके रॉकेट की वजह से गिराए गए कच्छ में। सरदार बैन सिंह हुए,
तो बहुत सारे लोगों ने शहादत दी है, कुर्बानी दी है मुल्क को बनाने के लिए अलग अलग समय। जब मिश्रा जी की हम बात करते हैं तो यहाँ जरूर अदालतों का हमारे दो साथी हैं, विवेक तनखा जी और हमारे वाइस प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन, उससे ये भी आज चर्चा करने का अवसर मिलता है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम कितना खराब। शायद 4 दशक लगे उनकी मौत के बाद उन लोगों को ढूंढने के लिए जो जिम्मेदार। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, 20 साल 30 साल 4 साल 40 साल, न सिर्फ लीडरों को मारने वालों के लिए कहीं दंगे फसाद होते हैं, उसको 30 40 साल अब तक उसको भूल गए। मेरी समझ में, मैं वकील तो नहीं रहा, मुझे मेरी समझ में नहीं आता वकील एक ही केस क्यों नहीं लेते और उसको 1 महीने में खत्म करते, किसी को तो सबको लटका के रखना 4 दशकों तक और किसी को इंसाफ नहीं मिले, उस इंसाफ का जो अंग्रेजी मुहावरा ठीक कि आप इतना लेट से करो तो उसका नमूना ही बराबर है, क्योंकि उसकी अपनी शायद तीसरी जनरेशन में उसका फैसला आ गया, तो उसका क्या फायदा, सब भूल गए। तो ये जहां हमें बहुत सारी चीजों में देश तब्दीली लानी है, वहां हमारे जुडिशियल सिस्टम मेरे ख्याल है इतना धीमा जुडिशियल सिस्टम कहीं जितना हुआ, उसमें जजेस की कमी है, लेकिन जजेस वकीलों की तो कमी नहीं है। यहाँ तो 1 लाख जज भी बन सकते हैं, इतने वकील, पत्थर मारो तो आपको वकील मिलेगा, क्योंकि आज जो बेकारी है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो बेचारे लड़कों को कुछ या लड़कियों को कुछ नहीं तो चलो वकालत करो, फिर उसमें कुछ हो या नहीं हो। लेकिन अब बाहर भी विदेश में भी वकील वकालत करेंगे, तो हमारे पास वकीलों को जज बनाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई दशकों तक जज सुप्रीम कोर्ट में खड़े रहते हैं, हाई कोर्ट में खड़े रहते हैं, हम बनते हैं, और जितनी जगह जजेस की खाली रहेगी उतने देर के बाद इंसाफ मिलेगा। आज के इस अवसर पर मैं अल्लाह से, भगवान से यही प्रार्थना करता कि इस तरह के लीडर और पैदा हो जाए। वो पीढ़ी लीडरों की थी जहां धर्म का कोई रोल नहीं था, धर्म सबका था, पूजा पाठ भी करते थे, शायद हम और आप लोगों से ज्यादा, गांधी जी से लेकर, लेकिन पूजा पाठ उनके व्यक्तित्व पर ही सहमत रहता था। उसका इंसाफ देने में, उसका कोई इंसाफ बांटते वक्त उसका कोई असर नहीं होता, इंसाफ बांटते वो बराबर सबको समझते। उनके छोटे भाई जगन्नाथ मिश्रा जी को तो बहुत नजदीक मेरे यूथ कांग्रेस के जमाने से लेकर, और उनकी जब मृत्यु हुई उसमें भी मुझे जाने का यहाँ फ्लैट में अवसर हुआ। इतनी सेकुलर फैमिली, 2 लोगों, एक से तो मेरा वास्ता ज्यादा बहुत बाद में पड़ा जब मैं MP बना, बहू बना दी, लेकिन इनको तो मैं यूथ कांग्रेस के जमाने से ही जानता था। ये 2 लोग मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं। मैं नेहरू खानदान के अलावा की बात कर, ब्राह्मण के वो लीडर, राजपूत के वो लीडर, दलित के वो लीडर, मुसलमानों के वो लीडर, बैकवर्ड के वो लीडर। तो रियल इंसान जो लीडर होगा, मैं जब हेल्थ मिनिस्टर था 2014 तक, तो हमेशा जब कन्वोकेशन डॉक्टर्स की करता था, मैं उनको बोलता था कि डॉक्टर, टीचर और पॉलिटिशियन का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। धर्म का मतलब नहीं है कि वो हिंदू से मुसलमान नहीं हो और मुसलमान नहीं, वो उसके घर में, वो घर धर्म गांधी जैसा हो। मैं गांधी को स्टूडेंट टाइम से ही पढ़ता आया हूँ और कोशिश की कि अपनी
जिंदगी में ज्यादा चीजों को नहीं, बल्कि एक दो चीजें कि सच और अहिंसा, उस पे चल रही। वो सबसे कट्टर हिंदू थे, लेकिन कट्टर उतने ही सेकुलर थे। तो उसका मतलब है कि अच्छा हिंदू या अच्छा मुसलमान होने का मतलब नहीं है आप कट्टरपंथी। वो उधर से डबल कट्टर सेकुलर भी थे। तो उसका मतलब है कि जो असली धर्म पे चलेगा वो सबसे ज्यादा सेकुलर होगा। जो ये डालडा हमारी तरह होते हैं तो वो गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि किताब में लिखा है वो तो पढ़ा नहीं है, तो सुनी सुनाई से। अब सुनी सुनाई वाला तो अलग अलग किस्म के। मैं अभी जम्मू में था 3 दिन पहले, तो सिविल रिसेप्शन हमको दिया गया था अवार्ड से 1 दिन पहले। तो मैंने बताया भाई इतनी राजनीति में रहने के बाद आदमी खो गया, आदमी में इंसान कोई नहीं मिलता। आज आपको मिलेगा ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये अपर कास्ट है, ये बैकवर्ड है, ये फॉरवर्ड है। फिर मुस्लिम में भी आपको शिया सुन्नी मिलेगा। यूपी में जाओगे तो मुसलमानों की 50 किस्में मिलेंगी। अल्लाह की मेहरबानी ऊपर वाले की कश्मीर में ये कोई कास्टिज्म नहीं है अभी तक, कब पहुंचेगा ये नहीं मालूम। और हिंदू भाइयों में देखेंगे तो फिर उसमें तुम और 50। तो मैंने कहा कि राजनीति में इस तरह की कास्टिज्म और कम्युनिज्म में इंसान कहाँ है वो ढूंढना। तो मैंने कहा कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं दिया कि भाई इंसान की खोज की जाए। इंसान भी तो कहीं होगा, ये तो सब कास्ट और धर्म की नहीं आदमी खोजे। आज वो जाना जाता है सिर्फ धर्म और जाति के नाम पे। आदमी के नाम पे कोई ये नहीं कहता ये अच्छा आदमी है, ये बहुत अच्छा आदमी है, ये नहीं कहेगा ये पढ़ा लिखा आदमी है, नहीं, ये कहेंगे ये इस कास्ट का, इस धर्म का। तो ये जो पीढ़ी एलन मिश्रा जी वाली पीढ़ी, उस इंसान की जिसकी खोज में हम सबको निकलना होगा, वरना आदमी इंसान इसमें खो जाएगा। हमारे तगमे यही रहेंगे धर्म की और जाति के नाम पे लगे हुए, और हम इंसान को पहचान नहीं पाते। तो आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर जो शहीदी दिवस भी है और जन्म दिवस भी है किसी, और चारों ये शहीद है देश के लिए। मेरे ख्याल में आज पार्टियां अपनी अपनी रहेंगी, धर्म अपना अपना रहेगा, उसको कोई बदलने की मैं सलाह भी नहीं दूंगा। और हो सकता है, संभव है, दुनिया ऐसे ही चलती आई। डेमोक्रेसी से पहले भी राजनीति थी, आज भी, और जहां डेमोक्रेसी नहीं है वहां भी राजनीति चलती। लेकिन इंसान की खोज में चले, और इंसान जो होगा वो देश की संपत्ति होगी। हमारे देश का उत्थान उसी में होगा, तभी जाके हम बढ़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो रास्ता एलन मिश्रा जी ने दिखाया था देश की प्रगति के लिए, देश को आगे बढ़ने के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, उस रास्ते पे चलने के लिए भगवान अल्लाह हमको शक्ति दे।